From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. تو اب مجھے یقین ہے کہ ہم وہیں جا سکتے ہیں جہاں ہم آئے ہیں، اس لفظ کو سننے کے لیے جو ہمیں آزاد کرتا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا، چلو پھر تلاش کرتے ہیں. اس بائبل میں ہم انجیل پڑھنے جا رہے ہیں. اس بائبل میں صحیفہ تاریخ ختنہ کی انجیل ہے جو صلیب سے پہلے تھی، جسے ہم نے خدا کا شکر ادا کر دیا ہے. اور اس طرح اب ہم صلیب کے بعد آنے والے زمانے کی خوشخبری میں ہیں. آنے والی صدی مسیح کے مرنے اور دوبارہ جی اٹھنے کے بعد شروع ہوئی. وہیں آنے والی صدی شروع ہوئی، ابدی زندگی شروع ہوئی. آپ کی ابدی زندگی اس وقت شروع ہوئی جب مسیح مر گیا اور دوبارہ جی الفاٹے، نہ کہ جب آپ نے اسے سمجھا. آپ کو بہت دنوں سے بچایا گیا ہے. جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تم اسے نہیں جانتے تھے، اور جب تم اسے نہیں جانتے تھے تم باطل میں تھے. آپ کے دماغ کی تب خادونت نے کیا کنا کہ اس نے آپ کی سمجھ کی آنکھیں روشن کر دیں، اور آپ نے دریافت کیا کہ خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ تھا. ہمیشہ، ہر چیز میں، بت پرستی یا جہالت کے باوجود جس میں آپ تھے، خدا وہاں دیکھ رہا تھا. میں نے جلد ہی اس پر انکشاف کیا اور میں اس پر خوشخبری ظاہر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں. آج کا موضوع الفاظ کے اثرات ہیں. اثرات الفاظ کی. آئیے رومیوں کے 16 باب کو دیکھتے ہیں. رومیوں کا 16 باب. آیت 17 اور 18 میں وہ کہتا ہے، بھائیو، میں اب سے مزید التجا کرتا ہوں کہ آپ ان پر توجہ دیں جو تفرقہ ڈالتے ہیں اور ٹھوکریں کھاتے ہیں، نظریے کے خلاف جو تم نے سیکھا ہے، اور یہ کہ تم ان سے دور ہو جا. اگر آپ کو یقین ہے کہ 34 سالوں میں اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں تو وہ وہاں رسولوں کے بارے میں، ختنہ کرنے والوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، یعنی عیسیٰ کے رسول. ان کے پاس ایک انجیل تھی کہ جب مسیح مر گیا اس انجیل کو ختم کیا، کیونکہ یہ شریعت کی انجیل تھی. صلیب کے بعد ایک اور خوشخبری شروع ہوئی جو کہ خدا نے پولس پر ہم غیر یہودیوں کے لیے نازل کی تھی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ رسول تبلیغ کرتے رہے، لیکن پولس کی انجیل نہیں بلکہ صلیب سے پہلے کی خوشخبری. سادہ، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہم پر واضح ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ چونکہ وہ انجیل کاموں کی انجیل تھی جس پر ہمارے تمام مبارک مسیحی عمل کر رہے ہیں، کاموں کی خوشخبری. اس لیے وہ ہمیں نہیں سمجھتے اور ہمارے ساتھ دشواری کرتے ہیں، جیسا کہ انہیں پولس کے ساتھ مشکل تھی. اس لیے پولس کہتا ہے، دیکھو، ان پر نگاہ رکھو جو ابھی تک خادونت کے سامنے ہیں. کاس، کیونکہ وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے. تو وہ ان سے کہتا ہے، میں اب سے التجا کرتا ہوں کہ آپ ان پر توجہ دیں جو تفرقہ ڈالتے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے، اور کہ تم ان سے دور رہو. اگر وہ شخص بارے کام نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے کہنے سے تفرقہ ڈال رہا ہے، ان سے دور رہو، کیونکہ اس سے آپ کو مشکلات آئیں گی. وہ مذہبی ہے، وہ مذہبی لوگ جو بری طرح گرتے ہیں. جب آپ جھوٹ میں ہوتے ہیں تو یہ آپ کو ناراض کرتا ہے. جب وہ آپ کو تھوڑا چوٹکی دیتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ یسوع آپ سے پیار کرتا ہے، یسوع آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کہتے ہیں، میں آپ کو جہنم میں ڈالنے جا رہا ہوں کیونکہ قانون غصہ پیدا کرتا ہے. دوسری طرف ہم نہیں کرتے. ہم آپ کو بتاتے ہیں یسوع مسیح آپ سے محبت کرتا ہے اور ہم آپ کو سکون کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کیونکہ ہم خود پر قابو رکھتے ہیں. فضل میں بڑھنے میں مشکل لوگ بھی ہیں.
ऐसे लोग हैं जो मेरे ही नहीं ताबूत में पड़े हैं लेकिन पांव बाहर हैं। वो छोड़ना चाहते हैं। वो इस तरह झूठ बोल रहे हैं लेकिन इसका एक हाथ बाहर बंदूक के साथ है। आयत 18 हम वहां हैं क्योंकि ऐसे लोग वो हमारे खुदावंद यसू मसीह की खिदमत नहीं करते। दूसरे लफ्जों में उनके पास नजरिया है, वो चर्च के अंदर हैं लेकिन वो यसू मसीह की खिदमत नहीं करते। हम इसकी वजाहत कैसे कर सकते हैं? आप इन लोगों को कहां तलाश करते हैं जो मुख्तलिफ अकायद में जुल्म व सितम का बाइस बनते हैं? चर्च में वो तकसीम का बाइस बनते हैं, वो नजरिए के खिलाफ हैं। फिर पुलिस कहता है जो कोई इस नजरिए के खिलाफ जाए जिसकी मैं तबलीग करता हूं, वो ना तो यसू मसीह से मोहब्बत करता है और ना ही यसू मसीह की खिदमत करता है। अगर वो यसू मसीह की तबलीग करता है, बहुत से लोग हैं जिनको मैंने यसू मसीह की मनादी करते हुए सुना है और वो जोश के साथ करते हैं। कभी कभी वो मुझसे ज्यादा जोश दिखाते हैं, लेकिन वो यसू मसीह से मोहब्बत नहीं करते क्योंकि ये समझ कर के मैं उनसे सच कहता हूं। वो मुखालफत करते हैं, अपनी तलाश करते हैं और मोहब्बत करते हैं। यहां ये कहता है कि वो किस चीज से मोहब्बत करते हैं। अगर उनके अपने रहम नहीं तो आप रहम की खिदमत कैसे करेंगे? तसव्वुर करें कि मैं कह रहा हूं यसू मसीह ने एक ही पेशकश के साथ आपको हमेशा के लिए कामिल बना दिया। तो आप कहते हैं, तुम समझो और कहो, अरे यसू मसीह एक ही नजराना के साथ उसने मुझे थोड़ी देर के लिए कामिल बना दिया। और हमेशा के लिए क्या है कि मेरी रूह हमेशा के लिए कामिल है। लेकिन फिर एक ख्याल आता है और आपको बताता है, अगर मैं चर्च से ये कहूं, फिर वो उसे संजीदगी से नहीं लेते और वो गुनाह में जा सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि आप पहले ही एक सच को देख रहे हैं जो आपको बताना जरूरी है, लेकिन आपके खौफ की वजह से और इस डर से कि लोग चर्च छोड़ देंगे, तो तुम कहो इंतजार करो, क्योंकि वो अपने पेट की खिदमत करता है, सच की नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यह वहां क्या कहता है, क्योंकि मैं अपने पेट की खिदमत नहीं कर रहा हूं, मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूं। तो जब मैं कुछ पढ़ता हूं, और मिसाल के तौर पर अगर बाइबल मुझे बताती है, क्योंकि हम बच्चे गोश्त खाते हैं, हमारी रूह ने गोश्त खाया, उसने भी ऐसा ही किया। मरियम के रहम में उसने गोश्त में हिस्सा लिया, एक जिस्म बनाया गया हमारे दरमियान होने के लिए, शैतान को खत्म करने के लिए। फिर मैंने अपने आप से पूछा कि शैतान को खत्म करना है तो शैतान हलाक हो जाता है। शैतान मौजूद नहीं है, उसने कब मरकर उसे तबाह किया? 2000 साल पहले। उसका मतलब है कि शैतान मौजूद था लेकिन 2000 साल पहले इसका वजूद नहीं था। लेकिन फिर अगर मैं चर्च को बताऊं कि शैतान मौजूद नहीं है, क्या आप नहीं देखते कि चर्च के अंदर ऐसे लोग हैं जो शैतान से डरते हैं? लिहाजा गिरजाघर से ये कहना मेरे लिए आसान नहीं है। और मैं जो कहता हूं, भाई, शैतान को तबाह करने के लिए आइए खिदमत जारी रखें। लेकिन मैं उसकी वजाहत नहीं करता, क्योंकि इसमें तुम कामिल हो और किसी चीज की कमी नहीं। मैं किसी चीज की कमी महसूस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मुझे अब यह कहने की जरूरत नहीं है, खुदावंद मुझ में काम मुकम्मल देखो, मेरी तजदीद करो। लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अगर मैं आपको बाइबल पढ़ता हूं तो यह कहता है जो खादोनत से मुत्तहिद है वो उसके साथ एक रूह है। मैं रब के साथ एक रूह हूं और रब कामिल है। हाँ, और क्या मैं रब के साथ एक रूह हूं? हाँ। अरे तो मैं बहुत बाबरकत हूं। लेकिन मैं उसकी वजाहत नहीं करता। जो रब से मिल जाता है, एक रूह उसके साथ होती है। लेकिन भाई, अच्छा सलूक करो। खादोनत कितना अच्छा है और उसकी रहमत अबद तक कायम रहती है, क्योंकि खादोनत भला है और उसकी रहमत अबद तक कायम रहती है। लेकिन आप उसके साथ नहीं रहेंगे। मुझे समझाओ कि वो अच्छा क्यों है। तो देखो यहां क्या है। वो कहता है क्योंकि ऐसे लोग हमारे खादोनत यसू मसीह की नहीं बल्कि अपने पेटों की खिदमत करते हैं और नर्म अल्फाज से। नर्म अल्फाज कहीं और चापलूसी सादा लौहों के दिलों को धोखा देती है।
क्या तुम जानते हो वो कैसा सादा लौ है जो नरम बातों से धोखा खा जाता है? अब जानते हैं कि मजहबी निज़ाम, प्रोटेस्टेंट, उंजेली बशारत, कैथोलिक, 2000 साल से उन्होंने नरम अल्फाज से धोखा दिया। नरम के मुख्तलिफ अल्फाज हैं। देखो मैंने यहां लिखा है सख्त अल्फाज है। कभी कभी ये लफ्ज मुश्किल होता है, कौन उसे कबूल करे। एक वफादार लफ्ज है, ये एक वफादार लफ्ज है। एक वफादार लफ्ज है, एक तेज लफ्ज है। ये कहता है कि खुदा का कलाम हर दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और घुस जाता है। ये जिंदा और मुअस्सर है और दिल के इरादों को पहचानता है। वो खुदा का कलाम है। जब वो बोलना शुरू करे और तुम कहो, अरे ये सच है, मैं बुरा हूं, मैं बुरा हूं और मैं बुरा हूं, रब देखो ये मेरे लिए नहीं है, मुझे इस सूरत हाल को ठीक करना है क्योंकि इसके लफ्ज ने आपको काट दिया। अब एक मजबूत लफ्ज भी है। वो कहता है कि लफ्ज रूह का मजबूत लंगर है। एक लफ्ज जो आपको ऐन कर देता है। लड़ाई के बीच में ये आपका साथ देता है, तूफान आता है लेकिन आप वहां एक कश्ती की तरह होते हैं। बहुत मजबूत। एक खाली लफ्ज है। वो कहता है कि ये खाली अल्फाज हैं कि वो अब से बोले जाते हैं लेकिन उनका आपकी जिंदगी पर कोई असर नहीं होता। आप कहते हैं मैं 10 साल से गिरजा घर में हूं, मैंने कुछ नहीं सीखा। और फिर ये कैसा है? ये बहुत आसान है। देखो मिसाल के तौर पर मैंने गिरजा घर देखे हैं। इतवार के दिन वो आपको कहते हैं भाई खुदा अच्छा है, देखो खादी हमारे लिए मर गया और कोई भी चीज हमें हिला नहीं सकती, आमीन। और तमाम लोग सुनो कि कितना जबरदस्त है। लेकिन दूसरे इतवार पादरी, मुझे नहीं मालूम कि इसके साथ क्या हुआ, कहता है भाई चर्च गुनाह में है, शैतान चर्च के साथ रहता है। तो गुज़श्ता इतवार को इसने आपको बताया खुदा ताकतवर है, हम मजबूत हैं, लेकिन अभी के लिए शैतान कुल्लिसिया के साथ रह रहा है। अब देखिए, और इस तरह भाई चर्च दुनिया की चीजों में है। खुदा ऐसी कौम के लिए नहीं आ सकता जो बुरे हैं उनको गुजरने दे। लेकिन फिर 3 इतवार पहले उन्होंने आपको बताया कि आप मजबूत हैं और ये कि कोई चीज आपको रब से जुदा नहीं कर सकती। अब इस इतवार को वो आपको कह रहे हैं होशियार रहो। तो वो खाली अल्फाज हैं। दूसरे लफ्जों में वो आपको नसीहत करते हैं, वो आपसे बात करते हैं। एक दिन वो आपको एक चीज बताते हैं लेकिन अगले इतवार को वो इसे बदल देते हैं और आप इस गिरजा घर में 10 साल गुजारते हैं और आप गैर महफूज रहते हैं। एक अदम तहफ़्फ़ुज़ आने लगता है, अरे क्या मैं महफूज रहूंगा। आप अपना वक्त गिरजा घर में गुजारते हैं रात दिन, क्या मैं बच जाऊंगा? मुझे यकीन है कि अगर मसीह आएगा तो मैं रहूंगा। तो नर्म लफ्ज के मानी है। ये एक लफ्ज है, नंबर 1 के नहीं, ये आपके जहन की तजदीद नहीं करता है। तुम वही रहो। आओ देखो इन सब लोगों को जो मेरी मुखालफत करते हैं। ये सब लोग 20-30 साल से चर्च में हैं और कोई उनसे कहता है भाई तकदीर मोहब्बत का अमल है, इस बारे में मोहतात रहें भाई। और लिखा है अपनी बाइबल में, वो उसे पढ़ते हैं लेकिन ये खाली है। उनके जहन पहले ही नर्म अल्फाज के आदी हैं जो उन्हें तरबियत नहीं देते। हाँ, जब पौलुस रसूल ने कहा मेरे बच्चों, जब मैं तुमसे बात करता हूं मैं मसीह को बनाना चाहता हूं, तुम में मसीह बनाना चाहता हूं। पौलुस ने जिस खुशखबरी की तबलीग की इसने मसीह को मोमिन में तश्कील दिया, लेकिन रसूलों ने जिस खुशखबरी की तबलीग की वो तश्कील नहीं पाई बल्कि बिगड़ी गई। तो पौलुस रसूल आपको बताता है कि एक लफ्ज है, एक और लफ्ज है जिसका नाम है सेहतमंद अल्फाज। आइए इसे दूसरे तीमुथियुस 1:3 में देखते हैं। यह कहता है नर्म अल्फाज की शक्ल बरकरार रखें, जैसा कि अच्छे अल्फाज। अपने किस्से सुना, तुमने मेरे बारे में क्या सुना? वो सेहतमंद बातें जो तुमने मुझसे सुनी हैं, ईमान और मोहब्बत में जो मसीह यसू में है। फिर पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, तीमुथियुस, जो अल्फाज में बोलता हूं वो सेहतमंद है। तसव्वुर करें कि तीमुथियुस ने पूछा था क्या कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो सेहतमंद नहीं है? पाल ने जवाब दिया होगा, अच्छा, नर्म अल्फाज हैं, खाली अल्फाज हैं।
ایک لفظ ہے جو نہیں بنتا، جو اب میں مسیح نہیں بنتا۔ الفاظ ہیں، دوسرے الفاظ ہیں۔ وہ کہتا ہے ایسے الفاظ جو کلیسیا میں حسد اور تقسیم کا باعث بنتے ہیں۔ الفاظ کی کئی قسمیں ہیں۔ ہر کوئی جو منبر پر کھڑا ہوتا ہے اور بولتا ہے اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے۔ در حقیقت وہ جگہیں جہاں وہ خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں بدترین جگہیں ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان دہ منبر ہے اگر لفظ صحت مند نہیں ہے۔ اور وہ کیوں کہتا ہے کہ صحت مند الفاظ کو مضبوطی سے پکڑو؟ کیونکہ پولس جانتا تھا کہ کچھ صحت مند نہیں ہے، جیسے اب جانتے ہیں کہ عیسائی ماحول میں سب سے مشہور اور معروف دعاؤں میں سے ایک ہمارا باپ ہے، لیکن ہمارے والد صحت مند الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ صلیب سے پہلے یسوع نے ان سے کہا دیکھو اب اس طرح دعا کرو ہمارے باپ جو تم ہو، جنت میں تیرا نام پاک ہو، تیری بادشاہی آئے، ہمیں برائی سے بچا۔ صلیب سے پہلے، لیکن مرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں برائی سے نہیں چھڑانے والا ہے بلکہ اس نے تمہیں شیطان کے قبضے سے بچایا ہے۔ تو اگر اس نے آپ کو نجات دی، لیکن اب جب آپ کہنا شروع کر دیں ہمیں تمام برائیوں سے بچا، وہاں یہ لفظ اب صحت مند نہیں رہا، کیونکہ اس نے اس طرح دعا کی مرنے سے پہلے، پھر اس کے مرنے کے بعد اب اس نے آپ کو شیطان کی طاقت سے آزاد کیا، آپ کو آزاد کیا خود شیطان سے۔ اب اگر تم کہو کہ اے خداوند مجھے برائی سے بچا، ایک اچھا جملہ لگتا ہے، ٹھیک ہے ہمیں برائی سے نجات دے، لیکن پھر آپ کسی چیز کو باطل کر رہے ہیں اور وہ آپ کو جواب دینے والا ہے میں نے تمہیں پہلے ہی آزاد کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ نہ صرف یہ نرم ہے، نہ صرف یہ بیکار ہے، لیکن یہ صحت مند نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو صلیب کے سامنے رکھ رہا ہے جب وہ آپ کے لیے پہلے ہی مر گیا تھا۔ دیکھو تمثیلوں میں ایسی مثالیں ہیں جو کہتی ہیں ان کے 10 کنواریاں تھیں کہ 5 کے پاس تیل بھرے ہوئے چراغ تھے اور 5 بے وقوف تھے، ان کے پاس تیل نہیں تھا، اور انہوں نے باقی 5 سے کہا دیکھو رب آ رہا ہے، مجھے اپنے چراغ سے تیل دو، لیکن تب انہوں نے جواب دیا نہیں، جاؤ تیل خرید لو، اور خادوند آیا اور وہ ٹھہر گئے۔ اب مجھے کچھ بتاؤ کہ اگر تم مسیح یسوع میں کامل ہو اور ایک ہی نذرانہ سے اس نے تمہیں کامل بنایا، اور جو کوئی خداوند سے متحد ہے اس کے ساتھ ایک روح، کیا آپ کے پاس خالی چراغ ہے؟ جب آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، اگر آپ نے اقرار کیا ہے تو یسوع نے مجھے شیطان کی طاقت سے آزاد کیا، اور ایک مبلغ کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو آپ کو کہے کہ بھائی یہاں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس خالی چراغ ہیں، تیل تلاش کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں سنو گزشتہ اتوار کو اس نے مجھے بتایا کہ کوئی چیز مجھے رب سے الگ نہیں کر سکتی، کہ مسیح میرا نجات دہندہ ہے، ایک طاقتور دیو اور لوہار کی طرح وہ میرے ساتھ ہے، لیکن اب وہ مجھے بتاتا ہے کہ میرے پاس تیل کی کمی ہے اور کہ میں رہنے جا رہا ہوں۔ کیا ہوا کہ وہ مبلغ صلیب سے پہلے اب سے بات کر رہا تھا کیونکہ یسوع نے ایسا کہا تھا، اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یسوع نے کہا؟ یسوع نے بہت سے الفاظ کہے جو اس عہد کے لیے صحت مند نہیں تھے۔ یسوع نے ایسے الفاظ کہے جو صحت مند نہیں تھے، وہ اپنے وقت کے لیے صحت مند تھے، لیکن اس کے مرنے اور جی الفاٹینی کے بعد اگر آپ ان کو دہرائیں گے تو آپ جال میں پھنس جائیں گے۔ دیکھو کی تمثیل، میں اس نسل کا کیا موازنہ کروں گا؟ وہ کہتا ہے میں اس کا موازنہ کروں گا۔ اس کا کہنا ہے کہ جب ناپاک روح آدمی سے باہر آتا ہے تو یسوع مسیح آ رہا ہے تشریح کے مطابق، تو وہ آتا ہے اور وہ آدمی پاک ہو جاتا ہے، لیکن آدمی لاپرواہ ہے، اور وہ اپنے گھر میں جھاڑو دیتا ہے، اور پھر ناپاک روحیں آ کر وہاں دوبارہ سکونت کرتی ہیں، اور اس آدمی کی حالت بدتر ہو جاتی ہے کیونکہ 7 بدتر روحیں اس میں داخل ہوتی ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، جب یسوع مسیح تمہاری زندگی میں آئے اور آپ کو بتاتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، کیا آپ کے گھر میں 7 بدروحیں آ سکتی ہیں آپ کے ساتھ رہنے اور کھیلنے کے لیے روحانی؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ان تمثیلوں کو پڑھتے ہیں تو ہوشیار رہو، متی، مارک، لوکا، یوحنا اور یہاں تک کہ اعمال کی کتاب کے الہام سے ہوشیار رہیں، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو موجود ہیں لیکن پہلے ہی پورے ہو چکے ہیں۔
तो अब एक पुराना अखबार खरीद रहे हैं, एक मियाद खत्म होने वाला नुस्खा। जब आप दूध खरीदने जाते हैं तो मियाद खत्म होने की तारीख क्यों देखते हैं? मैं बहुत सफर करता हूं, दूध खरीदता हूं, लेकिन फिर मैं 4 या 5 दिन के लिए चला जाता हूं और जब वापस आता हूं तो देखता हूं कि दूध खत्म हो चुका है। ये मियाद खत्म हो गई, मुझे उसकी खुशबू आ रही है, फिर मैं उसे फेंक देता हूं। आपको मियाद खत्म होने की तारीख को देखना होगा, क्योंकि दूसरी सूरत में तसव्वुर करें और इस तरह चर्च है, देखो पुरानी तरकीबें, पुराने मशवरा का इस्तेमाल करते हुए। अरे क्या आप जानते हैं कि चर्च क्या कहते हैं? नाम निहाद गिरजाघर, क्योंकि वो गिरजाघर नहीं है, लेकिन आइए इसे शक का फायदा दें। वो कहते हैं भाई रब अनकरीब आने वाला है, जल्द ही रब आ रहा है और बरुई की शादी आ रही है। महबूब चर्च मेमने से शादी करता है कि शादी में मेमने? अरे चर्च अपने कपड़े साफ करो ताकि जब वो आए वो तुमसे कहता है अच्छा नौकर बरुई की शादी पर आओ। वो अब शादियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शादी कब हुई थी? 2000 साल पहले। ये कहता है कि मसीह ने अपने आप को कुल्लिसिया के लिए पेश करने के लिए दे दिया, लिबास पहने, साफ, पाकीज़ा, दाग के बगैर, बगैर शिकन और दाग के बगैर। ये खादोनत की कुल्लिसिया है और वो शादियों के इंतजार में है। अरे मुझे नहीं मालूम, वो शादी पर जा रहे हैं, देखो वगैरह 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 वगैरह। क्या आपको वो तमाम बुरी मालूमात मालूम हैं जो उन्होंने आपको बेची हैं? क्या आप नहीं देखते कि नाम निहाद चर्च के कान बीमार हैं? कान बुरी मालूमात से भरे पड़े हैं। देखो मैं बहुत साफ बोल रहा हूं। और क्या आप जानते हैं कि आपको मुझसे जो खौफ था उसे खोने में आपको कितना वक्त लगा? क्या आप जानते हैं कि आपको कितना वक्त लगा? क्योंकि इसने आपको डराया, अगर यह गलत है तो क्या होगा, और अगर यह गलत है तो क्या होगा। बहुत से लोग ये सवालात पूछते हैं, लेकिन अरे जब आपकी समात ज्यादा हमवार हो जाती है, लोग पहले ही इतनी मजम्मत से थक चुके हैं। और मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, हजारों और हजारों और हजारों ऐसे हैं जो हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन वो उनके साथ भी नहीं हैं, वो घरों में हैं। वो अब गिरजा घर जाने की ख्वाहिश महसूस नहीं करते। मैं उन्हें थके हुए सुन्नतों को कहता हूं। ऐसे कितने थे? हाथ उठाओ वो जो पहले ही थक चुके थे, जो एक और लानत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। थके हुए सुन्नतों, वो उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो अब इन चरवाहों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमेशा एक ही कहानी के साथ, भाई आइए मिलिक्की की किताब तलाश करें, और वहां उन्हें चूर कहते हैं। देखो ऐसे नबी को ढूंढते हैं। कभी कभी आप उन्हें पुलिस के बारे में बात करते हुए देखते हैं और अब कहते हैं वो पुलिस के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि चिल्लू दूसरा नामी पर चलते हैं। तो वो आपको रात के खाने पर मदऊ करते हैं, देखो आओ मेरे पास आपके लिए ताज़ा खाना है, और जब आप वहां पहुंचेंगे तो ये इन तेज रिसत्तुरा के खाने में से एक है। ओ मैंने सोचा कि कुछ फलियां के साथ थोड़ा सा चावल है, प्याज के साथ कुछ पीटाकॉर्न के साथ बीफ स्टेक है, लेकिन देखो हम तेल से भरे फ्राइज के साथ हैमबर्गर पेश करते हैं। अरे मैं आपको बताता हूं कि एक शख्स लॉस एंजलिस के एक चर्च में गया और फिर मैं खुदा की तलाश में था। मुझे एक गिरजाघर चाहिए, मुझे एक गिरजाघर चाहिए, मुझे मसाइल हैं, एक कहाँ है? फिर किसी ने इससे कहा, देखो वहां एक है, कोने में एक खूबसूरत सफेद है, तुम उसे वहां देखने जा रहे हो। और उसने कहा, वो आखिर में रब के पास आया, वो जाकर बैठ गया और बुध का दिन था। ये इतवार नहीं था, क्योंकि बाज औकात वो आपको इतवार ऐसे पेश करते हैं जैसे वो बेहतरीन हो। बुध का दिन था, घर बंद था, फैमिली वहां थी, और फिर ग्रुप छोटा था और एक दुआया खिदमत थी। तो पादरी ने कहा, भाई चलो अर्जियां पेश करते हैं। उसने पूछा, कोई दरखास्त है?
और एक औरत रुक गई और उसने कहा, ओ पादरी, देखो, मेरे बच्चों के लिए दुआ करो, मैं अपने घर में उनकी मुसलसल लड़ाइयों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उनकी तालीम और परवरिश की, लेकिन वो हमेशा लड़ते रहते हैं, उनके लिए दुआ करे। और कहा, हाँ बहन, और किसकी दरखास्त है? भाई, मेरी शादी टूट रही है। क्योंकि ये दरखास्तें हैं, उनका जिक्र करने का यही वक्त है। इंतहाई खुलूस के साथ लोग अपनी दरखास्तें पेश करते हैं। आइए देखते हैं कि दरखास्तें क्या है, दूसरे की क्या फरमाइश है। भाई देखो, गिरजाघर के लिए दुआ करो क्योंकि वहां तकसीम है। जब आप इतवार को तबलीग करते हैं तो वो बाथरूम जाते हैं और बातें करने लगते हैं। आप उन्हें कहते सुनते हैं, हमें अपने पादरी के लिए दुआ करनी है। और फिर बाद में डीकुन खड़ा होता है और कहता है, देखो, मुझे लगता है कि ये हो रहा है, मैं ये मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मुझे काम से निकाल देंगे, मेरे लिए सब कुछ खराब हो रहा है, वो मेरी गाड़ी ले गए। अरे, और वो आदमी जो वहां गया था। और फिर चरवाहे ने उसे देखा और कहा, अरे, हमारे यहां एक मेहमान है, बरा करम हमें अपना नाम बताएं। अरे नहीं, देखो, मैं जा रहा हूं। इस आदमी ने कहा कि मैं बुरा समझता था, लेकिन मैं तुम सबसे बेहतर हूं। खत्म करने के लिए ईमान है, यकीन किस बारे में, क्या तवक्को है, जो नहीं देखा इसका यकीन। दूसरे लफ्जों में ईमान इस बात का यकीन है कि आप क्या है, इंतजार कर रहे हैं, और यकीन है कि ये आएगा, आप उसे नहीं देख सकते, आप उसका इंतजार कर रहे हैं, और एक यकीन है कि ये आएगा। ठीक है, वो ईमान है। अरे चलो खड़े हो जाओ।